required and everyone is doing investment. So we know investment is required and everybody is doing investment, whether investment in bank account, mutual fund, share, gold, insurance, PPF. We have lots of option for investment. But whether you have thought before making investment, what we have to think? If I ask with you, most of the case we got answer like we have to make some tax planning, tax saving scheme karna tha. I have to invest at approx 1,50,000 for ATC. I have invested. Okay जी. उसके बाद अगर पूछता है कि ठीक है, if you want to invest apart from 1,50,000, that is the essential for ATC for the tax deduction, tax benefit. So why you make? What is the, what you have the purpose, what you have the goal? नहीं जी, इसमें क्या हुआ था कि my brother has told me कि this share is going to very high. Just I have invested. Or some person has told me कि this land will appreciate within the 5 years, 6 years, 10 years. So I have invested. Like right now, some person is saying कि international airport is coming in Noida. That is the Jewar Airport. Okay, so lots of person is saying कि land around Jewar Airport will be the high demand in the 4 to 5 year, or it will be the hot cake. Like today we have invested 10 lakh rupees, might be possible after 5 year or 10 year it can be 50 lakh rupees, 1 crore or 2 crore, 5 crore, anything can happen. I'm sure it will happen, because if airport will be there, the lots of other traffic will be there, hotels will come, and residential house also come, because whatever the person who will working in hotels, who will working in airport, they will live around. Okay, so it is the 100% sure ki property will grow. Lekin how much it will grow and what is the right kind of the property? So there are, so you have to think lots of you have to investigate lots of before making any investment, whether it is in the real estate, gold, mutual fund, or share. So that I have taken today topic, how to make investment. Yeah. So investment today we will think we will see type of investment, purpose of investment, and pre-consideration. कि हमें पहले what we have to think before making investment. So whatever you have the question, you can put down, you can write down in your diary, notepad, or even you can put in chat box. So once I will complete my session, so we will discuss question answer. So first of all, we will see कि कौन-कौन सा type है investment करने का. So like FD or saving, जहाँ पर you can put money in bank. Insurance, it can be medical insurance, it can be life insurance, it can be term insurance, any kind of insurance. Investment in business, like you have invested some amount in a startup, or your friend, your relative, or your brother has started some business, and you have job, but you want to invest as a partner. Like total capital is going to the 5 lakh rupees, so you told 2.5 lakh रुपया मेरा, 2.5 lakh रुपया 50-50 we will have the partnership in capital. But as being the fiscal, I will not contribute in business because I have to do my job, but financially I will support, and whatever the profit we will share in 50-50 ratio, or we will share 60 yours, 40 mine, because I'm not involved in this business. So there are like this kind of the investment in business. I can invest into business as in a startup, in any friend relative business, or even I can give some time, like I have off on Saturday and Sunday, so I can 100% give on Saturday and Sunday, and after coming office, or suppose that it is a consulting company, the event in the evening time, or I have to make some report, I have to make some analysis, so I can give some time, daily basis, 1 hour, 2 hour every day. So this kind of the investment we can do. Then PPF, loan, gold, real estate, shares, mutual fund. Apart from that, if I was not able to write, so there is some other kind of the investment like government bond or etc. There are lots of type of investment. So just I want to say there are lots of opportunity, lots of type of investment available in market.
what you have to do and which investment is good for you. Suppose that if you have the PPF one account or two accounts, suppose that you have the PPF for one for yourself and one for your wife, and you want to invest, तो I will suggest don't go for PPF. अब आप इसको गोल्ड में, रियल एस्टेट में या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो. Suppose that you have invested 5 lakh rupees, 10 lakh rupees, 20 lakh rupees in 3 business. Now you want to invest in some other business, you have the surplus money of 10 lakh rupees. So I will suggest don't go for the startup or any business, because you have find out in business they are not giving the return, proper return, because sometimes business has losses, sometimes business is not able to recover money from debtors. So I will suggest go for the mutual fund, go for the share, because in share and mutual fund you can get some 5%, 10% yearly on average, or you can go for the FD liquid fund where you have the some guaranteed income. So this kind of the mixture possibility you have to discuss, you have to think before making any investment. Now, so under what circumstances will you take PPF, and under what circumstances will you take mutual fund and FD? actually it is the subjective, Sanju. Suppose that you have started your job and you have the surplus money. Let's assume your salary is the 10 lakh rupees, or you have the goal ki I will invest 2 lakh rupees per annum. Okay, 20% you have to make a investment of your total income. Okay, so it is the, you have to think how much amount you have to give in insurance, how much amount you have to give the PPF, and how much amount should go in mutual fund or shares. I will never suggest ki give whole amount in one basket. ये तो कभी मत करना. You have to choose mixture, or you have to choose the combination of investment. Like 2 lakh rupees आपको invest करना है, तो you have decided कि 50,000 का I will go for the PPF, for 25,000 I will go for health insurance, for 20,000 I will go for the term insurance, for balance amount I will go mutual fund, and like 20-30,000 I will go on the open market, share market, whether it will go down or up down. Okay, so it will depend on your goal. Suppose that you have taken already house loan, और आपका जो EMI जा रहा है, your EMI is going approx 30,000 per month. Okay, so in whole year how much EMI you have paid? That is the 3,30,000. साढ़े 3,60,000 का आपने EMI पे किया. If you will find out, so let's assume I am thinking कि 50% is the principal amount, 50% is interest amount. So how much principal amount you are paying? It is the approx 1,80,000. And 80C में maximum deduction you are eligible, that is the 1,50,000. So principal amount paying on repayment of house loan is considered, is also part of 80C. तो जो आपको 80C में tax saving के लिए you are interested to buy mutual fund, you are interested to buy open PPF account, जो already आपका housing loan की interest से set up हो गया. Okay, तो so you don't have the purpose to fulfill your 80C. तो अब आपको 80C का तो टैक्स बेनिफिट मिल चुका है. ओके, तो यू विल थिंक कि अब मैं ये जो इन्वेस्टमेंट करूं इससे मेरे को कुछ टैक्स भी देना पड़ जाए, बट इट विल गेट सम द गारंटेड इनकम, और माय मनी विल बी सेव, और हायर आई कैन टेक द रिस्क. देयर इज द वन ऑप्शन. सेकंड, सपोज दैट यू हैव द हाउस लोन, मतलब यू हैव लोन ऑन हाउस प्रॉपर्टी, और उसका इंटरेस्ट आ रहा है 60,000 70,000. यू हैव वन किड और टू किड्स, उसका जो ट्यूशन फी आ रहा है वो अप्रोक्स आज के डेट पर every private school is charging 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 per month. तो आपका वो जो 70-80,000 इंटरेस्ट का अमाउंट था, और जो ये ट्यूशन फी 5,000 या 8,000 या 9,000 पर मंथ है, वो दोनों मिला के इट विल कम अप्रॉक्स और मोर देन 1,50,000, विच फुलफिल योर 80C का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है. तो वट एवर you have the balance money, so don't think only for the tax saving, क्योंकि tax saving आपका ऑलरेडी हो चुका है. Go for the some higher return, जहां पर या guaranteed return पर आप जाओ. तो इस तरीके से you have to make combination कि at what stage you are, और ऑलरेडी क्या आपका सिनेरियो चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये चीज देख के करना पड़ता है. ओके, नाउ तो टुडे सेशन वी विल डिस्कस कि व्हाट इज योर पर्पस. टैक्स सेविंग करना है, या फिर यू हैव टू अर्न वेल्थ, यू हैव टू अर्न पैसिव इनकम, आपको करना क्या है. टैक्स इम्पैक्ट, लॉक इन पीरियड. डू यू नो कि इफ यू हैव स्टार्ट योर पीपीएफ अकाउंट, तो पीपीएफ में 15 साल के लिए पैसा
लॉक हो जाता. बिफोर 15 ईयर यू कैन नॉट विड्रॉ मनी फ्रॉम पीपीएफ. यस, आफ्टर 5 ईयर you can take loan. Suppose that in my PPF I have invested every year 1 lakh rupees. So within the 5 year I have the total fund 5 lakh rupees in PPF account. If I require some fund, what I will do कि मैं मेरा जो पीपीएफ अकाउंट, वेदर इट इज इन पोस्ट ऑफिस और इन बैंक, दे अलाउ टू मेक 90% ऑफ टोटल फंड यू कैन विड्रॉ एज ए लोन, और वो मेरे को 1% एक्स्ट्रा चार्ज करता है. सपोज दैट माय पीपीएफ इंटरेस्ट इज अप्रॉक्स 8% या 8.25%, तो बैंक और पोस्ट ऑफिस विल चार्ज 9.25% ऑन 4.5 lakh rupees. लेकिन that money I can withdraw. Okay, लेकिन whole amount you cannot withdraw before completion of 15 years. तो ये लॉक इन पीरियड हो जाता. तो ये आपको एक कंसीडर करना चाहिए कि if I have made investment or within 2 years, 3 years, 5 years, if I need some money, तो वो पैसा मैं कैसे वापस लूंगा. ओके, तो इन पीपीएफ आप एज ए लोन तो ले सकते हो, बट यू हैव टेकन एनी इंश्योरेंस, तो वो अगर 15 साल या 20 साल का लॉक इन पीरियड है, तो 3 साल 4 साल में दे इवन दे डोंट प्रोवाइड एनी लोन टू यू. तो इस तरीके से यू हैव टू थिंक लॉट्स ऑफ एलिमेंट. लास्ट ऑन द रिटर्न, वो रिटर्न क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, 8%, 10% रिटर्न. फिर टैक्स जो जैसे पीपीएफ पे जो इंटरेस्ट आता है दैट इज अ टैक्स फ्री रिटर्न, टैक्स फ्री इंटरेस्ट आता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता. लेकिन यू हैव इन्वेस्टेड इन एफडी, यू हैव इन्वेस्टेड इन सम अदर, तो वो टैक्सेबल इनकम होता है. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पॉइंट है, और दैट इज द टैक्स फ्री और exempted. ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट टाइप, एज आई टोल्ड यू कि one is the tax saving and another is non tax saving. So tax saving is the point जहां पर 80C में you get the 30% deduction, like your income is the 15 lakh rupees, और आपको पता है कि above 10 lakh rupees you have to pay 30% income tax. Total your income is the 15 lakh rupees, तो 2.5 lakh तक there is no tax. 2.5 lakhs to 5 lakh it is the 10% tax rate, and 5 lakh to 10 lakh it is the 20% tax rate, and above 10 lakh rupees it is the 30% tax rate. That is the one. If you go for the new slab, तो वहां पर you will not get any 80C deduction. That is the slab rate. 2.5 lakhs to 5 lakh it is the 5%, then 5 to 7.5 it is the 7.5%, फिर 10%, 12.5, that is the separate thing. But you want to take benefit of 80C, you have to opt old tax regime जहां पर 10, 20 और 30% है. What I want to say कि अगर your total income is the 15 lakh rupees, तो आपका जो total tax जाएगा on average 1.25 10 लाख तक जाता है, और 5 लाख का 30%. On average your taxable income will be 2.75 lakhs जाएगा. But you have invested 1,50,000 in 80C, तो your tax rate will be होगा 490, और ये तो your tax will be approx 2,10,000, जो आपको on average 60,000 का बेनिफिट देखा जाएगा, जो which is you can say कि 1.5 लाख का 30% जो भी निकल के आता है, 50% और प्लस एजुकेशन से सब का, वो आपको बेनिफिट देखे जाता है. देन यू हैव टू मेक प्लान कि आपका टैक्स कितना सेव हो रहा है कि नहीं. तो दैट इज द वन इन्वेस्टमेंट टाइप, वेदर यू आर लुकिंग फॉर द टैक्स सेविंग के लिए और नॉन टैक्स सेविंग के लिए. ये आपको एक माइंड में कंसीडर करना है, सोचना है. इफ यू आर लुकिंग फॉर द टैक्स सेविंग, तो जो 80C में जो जो चीजें लिखा हुआ है, यू हैव टू इन्वेस्टेड इन, यू हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दोज इंस्ट्रूमेंट अदर्स. उसके अलावा सपोज दैट यू कंप्लीटेड योर 80C बास्केट, उसके बाद तो आप यू आर फ्री कि आप स्टॉक मार्केट में जाओ, कमोडिटी मार्केट में जाओ, बिटकॉइन में जाओ, रियल एस्टेट में जाओ, गोल्ड में जाओ, जहां जाना है आप जाओ. नोबडी इज बॉदर. वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं है, और वंस यू विल सोल्ड आउट दैट इन्वेस्टमेंट, तो यू हैव टू मेक टैक्स पेमेंट. सपोज दैट आई हैव द वन रियल एस्टेट, मुझे 80C में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. वंस आई विल सोल्ड आउट आफ्टर 3 years, 4 years, 10 years, 20 years, whatever the profit will come, वो मेरे को लॉन्ग टर्म टैक्सेशन देना पड़ेगा 20% के रेट से, वो एक अलग मैटर है. देन योर इन्वेस्टमेंट कैन बी लॉन्ग टर्म
एज वेल एज शॉर्ट टर्म। ये आपको डिसाइड करना है कि कितना पैसा आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगा सकते हो, कितना पैसा यू कैन इन्वेस्ट इनटू शॉर्ट टर्म। दैट विल डिपेंड आपका एज क्या है, आपका गोल क्या है, आप कितना पैसा अर्न करते हैं। सपोज दैट मिस्टर ए इज अर्निंग 15 लाख रुपीज पर एनम और उसकी एज है 25 की, और ही हैज टेकन डिसीजन कि 30 इयर्स तक उसको शादी नहीं करना है। हिज पेरेंट इज सेइंग घर में ही रहते हो, खाना पीना का सारा खर्च मेरा होगा। देन उस 15 में से दैट मिस्टर ए 2-3 लाख रुपए अपना पर्सनल खर्च के लिए साल का यूज कर रहा है, और ही इज इंटरेस्टेड कि 12 लाख रुपीज आई विल इन्वेस्ट। तो ये आपको सोचना। तो अब इसको पता कि 5 साल तक तो मेरी शादी नहीं होनी है, ठीक है, तो ये तो लॉन्ग पीरियड। तो वो जो 12 लाख रुपीज है, एटलीस्ट ही कैन गो फॉर द लॉन्गर पीरियड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर वो फिर लास्ट ईयर में आ जाता 29 या 30 में, देन ही कैन चूज वो फॉर द शॉर्टर पीरियड की अगर शादी होती है, देन ही हैज टू बाय न्यू हाउस, या ही हैज टू एक्सपेंस लॉट्स ऑफ मनी ऑन क्या कहता है, जो न्यू लाइफ आने वाला है, तो उस पर वो शॉर्ट टर्म कर सकता है। तो दैट विल डिपेंड कि आप किस एज पर हो और क्या आप कर रहे हो। टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग में आपको ये देखना है कि हाउ मच यू आर गोइंग टू सेव टैक्स, वेदर आप 5% पर हो। सपोज दैट माई इनकम इज टोटल 5 लाख रुपीज, माई इनकम इज टोटल 5 लाख रुपीज। सपोज दैट आई एम अर्निंग 50,000 पर मंथ, तो माई इनकम अप्रॉक्स 6 लाख रुपीज। इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, तो माई इनकम नाउ टैक्सेबल इनकम 5,50,000। और उसके बाद मैं हाउस रेंट देता तो 50,000 का मेरे को लेट्स एज्यूम एचआरए का बेनिफिट मिल गया, तो माई इनकम विल कम अप्रॉक्स 4,99,000। as you know कि if your income is less than 5 लाख रुपीज there is no tax। अब मैं 4,99 पर मेरे को कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अब मैं जाऊं पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए फॉर टैक्स सेविंग, there is no sense। हाँ, you can go पीपीएफ फॉर द योर सिक्योर ऑफ योर फ्यूचर, लेकिन टैक्स सेविंग के लिए नहीं जा सकते। रीजन 4,99 के ऊपर तो देयर इज नो टैक्स, तो आप पीपीएफ में भी पैसा डाल दोगे तब भी आपको टैक्स सेविंग कुछ नहीं मिला। लेकिन वही इनकम, इफ योर इनकम एक्सीड 5 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज, देन यू हैव द सम टैक्स सेविंग। तो ये आपको सोचना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आपका टैक्स कितना सेव हो रहा है, उसके ऊपर रिटर्न कितना मिला है। इन पीपीएफ इट इज अप्रॉक्स 8%, और अगर आप इंश्योरेंस में डालते हो देन मनी बैक पॉलिसी या टर्म पॉलिसी होता है, या इंश्योरेंस का जो होता है गारंटेड प्लान, if you will find out if you have, आप एक बार सर्च करना, वो 4 to 5% से ज्यादा नहीं होता। दे कमिट कि हम आपको 20% देंगे, या आफ्टर 5 ईयर या 10 ईयर यू विल गेट 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज। बट वट एवर अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड ओवर द पीरियड, और जो लास्ट में 10 साल के बाद मिलना है, जब आप उसको सर्च करोगे तो ये 4 to 5% से ज्यादा रिटर्न कभी नहीं होता है। लॉक इन पीरियड, एज आई टोल्ड यू, पीपीएफ में ये 15 इयर्स के लिए मनी स्टॉक। यू हैव टेकन एनी लाइफ इंश्योरेंस, ओके, लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम एनी कंपनी, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हो, एसबीआई का हो, मैक्स का हो, या किसी भी कंपनी का हो। तो लाइफ इंश्योरेंस में जनरली इट इज ए लॉक इन पीरियड 8 इयर्स, 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर का वहां भी होता है। और वहां से तो आपको यू नेवर गेट एनी लोन, और इस तरीके का आपको फैसिलिटी भी नहीं मिलता है। अगर आप विड्रॉ करते हो तो 30-40% रिड्यूस करके ही आपको पैसा मिलता है प्री मैच्योरिटी। तो ये सब कुछ इश्यूज है that you have to think before making investment। then fund available, as I told you कि मेरे इनकम 8 लाख रुपीज है, बट आई डोंट हैव फंड टू मेक टैक्स सेविंग। मान लो मैं 8 लाख के ऊपर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके टैक्स कितना बचा लूंगा, क्योंकि 20% का है, 1.5 लाख का मैं 20% बचा लूंगा, हाँ 30,000 रुपीज। बट मेरे पास 1.5 लाख रुपया नहीं है, 1,50,000 नहीं है, तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल टेक सम लोन। Suppose that I am giving the interest on that loan, or I have taken the loan even interest free from my parent, from my brother, from my friend, then it is not a good thing। You have taken loan or you are making investment, because you have taken loan from your friend, और उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया, और आपका फ्रेंड आफ्टर 6 month या 1 year दे विल आस्क, तो वो क्वेश्चन करेगा। अब इफ यू टोल्ड यू कि उस लोन से तो मैंने भाई इंश्योरेंस परचेज कर लिया, तो वो आपको गाली देगा, और नेक्स्ट टाइम आपको पैसे भी कभी नहीं देगा। इफ यू नीड रियली इन नीड आप मांगोगे तब भी आपको पैसा कभी नहीं देगा। ओके, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास अपना फंड कितना अवेलेबल है, कैसे आप उस चीज को यूटिलाइज करना है। नाउ
अदर देन टैक्स सेविंग में सपोज दैट यू हैव कंप्लीटेड योर 80C का म्यूचुअल फंड में डाल के, या फिर आपने पीपीएफ में डाल के, या बच्चे का एजुकेशन का, या हाउस रेंट से यू हैव कंप्लीटेड योर 80C बास्केट, देन यू हैव द ऑप्शन अदर देन सेविंग टैक्स। टैक्स बचाने के अलावा आप कैसे कर सकते हो? तो व्हेन यू आर थिंकिंग इन्वेस्टमेंट और अदर देन टैक्स सेविंग, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल गोल। ये आपका गोल क्या है कि आफ्टर 5 years you want to purchase house, after 2 years you want to change your home, after 3 years you want to go every year abroad for your holiday. If you have interest to go abroad for your holiday, तो at least it will come 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, 3 lakh rupees. Okay, so you have some financial goal कि मुझे 2 साल के बाद एक बार अब्रॉड घूमने जाना है, या आफ्टर 5 years I have to change my car, after 6 years I will change my home, या I will purchase new home. तो whatever you have the goal, yeah, you are interested कि after 10 years my kids will go MBA college or etc, whatever you are thinking. तो ये जो goal है, you have to make your goal according to your goal, you have to make investment. Then tax impact, उसका टैक्स इम्पैक्ट क्या है? लाइक अगर मैंने एफडी किया तो उससे जो आने वाला रिटर्न है वो उस पर कितना टैक्स लग रहा है। जैसे कि मैंने आरबीआई टैक्स फ्री बॉन्ड में पैसा जमा किया, ओके, देयर इज अ बॉन्ड इन आरबीआई दैट इज टैक्स फ्री, जिसको आरबीआई बॉन्ड बोलता है वो जनरली टैक्स फ्री होता है, लेकिन दे हैव द वेरी लेस रिटर्न, लाइक 6% का है, लेकिन वो टैक्स फ्री होता है। सपोज दैट योर शेयर इज गिविंग 8% और 9% इनकम टू यू, और वहां पर 30% इंट्राडे में या फिर शॉर्ट टर्म में 30% टैक्स कट गया, तो 10% का 30% यू हैव गिवन इनटू टैक्स, तो 7% ही बचा। वहां पर आपका अनसर्टेनिटी है, बट इन आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड इट इज द सर्टेनिटी कि एटलीस्ट दे विल प्रोवाइड अस 6%। वो आपको देखना है कि वंस यू विल रिडीम और यू विल गेट सम मैच्योरिटी, तो व्हाट विल द टैक्स इंपैक्ट, वेदर इट इज द लोअर रेट 20% है, 10% है, या नॉर्मल रेट पर है, या एग्जम्प्टेड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। Then again you have to understand lock-in period. If you are doing the investment that is not for the tax saving purpose, so I will never suggest go for the lock-in period, because जैसे RBI bond होता है, that is the lock-in period of 5 years, 6 years. It means lock-in period का क्या मतलब होता है कि suppose that today I have taken RBI bond of 1 lakh rupees, then my 1 lakh rupees will be locked for 5 years. 5 साल से पहले वो पैसा मैं निकाल नहीं सकता. I will not get any maturity amount for 5 years. Yeah, after the end of 5 years, I will get 5 lakh plus interest amount. All amount I will get. So ये you have to understand कि if you are going to take any investment that has the 3 years, 5 year, 10 year lock-in period, तो क्या उस बीच में अगर पैसे की आपकी जरूरत पड़ जाती है तो how you will manage, और क्या आप उस बिना इन्वेस्ट वो जो लॉक इन में जो पैसे ऑलरेडी दिया तो उसके बगैर भी आप अपना खर्च कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, नाउ यू हैव द स्काई, देयर इज नो लिमिट ऑफ स्काई, लाइक आप स्टार्टअप में जा सकते हो, यू कैन गो इन द शेयर्स, यू कैन गो इन द म्यूचुअल फंड, यू कैन गो इन गोल्ड, यू कैन गो इन कमोडिटी, यू कैन गो बिटकॉइन, एनीवेयर यू कैन गो। आई एम नॉट प्रमोटिंग बिटकॉइन और शेयर्स, don't ask question कि you are promoting Bitcoin. I am saying कि you have the lots of option where जहाँ पर आपको टैक्स सेविंग नहीं करना है, you can go ahead anywhere. आप किस तरीके से करना है that you have to think. रिस्क, उसके साथ रिस्क कितना एसोसिएटेड है। इन शेयर मार्केट इट इज द मोर रिस्क, बट इन म्यूचुअल फंड इट इज द लेस रिस्क। इफ यू हैव चूजन गोल्ड, देन इट इज द रिस्क ऑफ द कि आपने गोल्ड, अपने घर में 1 किलो गोल्ड रखा हुआ, तो माइट बी पॉसिबल कभी कोई चोर आएगा, चोरी करके ले जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब देयर आर द lots of different kind of risks. Suppose that you have the 5 crore, 10 crore, you have purchased the 10 house या 10 plot, then you have the another risk, कोई उस पर कब्जा नहीं कर ले, या जो किराएदार आया है वो गलत इंसान ना आ जाए, they are paying some rent that is the 2%, 3%, 5% of the capital value, but अगर उसने कब्जा कर लिया, then आप क्या करोगे? पता चला आप कोर्ट में केस लड़ रहे हो, जितने की प्रॉपर्टी नहीं उससे ज्यादा का एडवोकेट का खर्च हो गया, then you have to identify where you are making any investment, what kind of risk is associated with that asset or that instrument or that investment. उसके बाद you have to make mixed investment, like you have 1 lakh rupees surplus,
then 20,000 should be in equity, 10,000 in mutual fund, 10-20,000 in saving account or FD account. Balance 40-50,000 you can go for any business or you can go for the gold, but we have to make the mixed investment so that kahin ek mein if any investment goes down, yeah, market is going down for the one kind of investment, yeah, two kind of the investment, but one another investment can go up. Just say in COVID we have seen every business and goes down, but IT sector, Zoom, etc. has grown up. Suppose that किसी ने जिसने Zoom में लगाया था कोविड से पहले, जो आज और हम वी आर द फेमिलियर विद द जूम, कोविड से पहले हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। वी नो स्काइपी जानते थे, गूगल हैंगआउट जानते थे, व्हाट्सएप वीडियो जानते थे, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट द जूम की जूम इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो जो जूम का मालिक पहले सोचता था पैसा कमाएंगे, कोविड आने के बाद कहां से कहां पहुंच गया। ओके, तो अगर सपोज दैट यू हैव द वन इन्वेस्टमेंट इन दिस काइंड ऑफ द कंपनी और बाकी आपका मैन्युफैक्चरिंग में कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट था, तो ऑल विल डाउन, एक अप कर गया वही आपका बराबर बैलेंस कर जाएगा। सो मिक्स इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड में, शेयर में, सो दैट कि कोई एक डाउन होता दूसरा अप करे। ये यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक। इमरजेंसी फंड, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन कल को आपको स्टडी के लिए पैसा जरूरत पड़ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, या फिर यू नीड सम एकदम इमरजेंसी फंड, तो कैसे आप मैनेज करोगे? ये चीज आपके पास होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट फंड कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अगर आज फिर से आपको 2 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो फंड कैसे क्रिएट होगा? इन फ्रॉम करंट, जो करंट इनकम है उससे क्रिएट होगा, या जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसका जो डिविडेंड आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है, तो वेदर यू आर keeping that interest and dividend income for yourself, या you are reinvesting, तो वो आप reinvestment के लिए क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट 2 साल पहले मैंने एक एफडी में पैसा डाला 2 लाख रुपीज, उसका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है 6%, वो मैंने क्या किया, आई एम नॉट टेकिंग इनटू माय सेविंग अकाउंट, आई एम कीपिंग इन सम अनदर अकाउंट, एज ए इन्वेस्टमेंट फंड कर दिया कि आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 2 लाख ही हो जाएगा, 24,000 मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो फिर से मैं रीइन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा आ रहा है, इफ यू आर नॉट, if you have the some inflow for your sustain, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि whatever you have the investment, उससे जो भी इनफ्लो आएगा उसको इन्वेस्टमेंट फंड में रखो, so you can reuse for future or at older age. Update detail in portfolio, जहां जहां you have investment you have to update your mobile number, email ID, so कोई फ्रॉड नहीं कर सके कि कोई आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आपसे का पैसा या रिडीम नहीं कर ले, मैच्योर नहीं कर ले। तो ये चीज आप करना, वट एवर यू हैव द पोर्टफोलियो, वेदर इट इन इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और एनीवेयर, आप अपना डिटेल अपडेट रखना। जो बहुत बार लोग मिस कर जाते हैं कि घर चेंज कर लिया, पहले जिस घर में थे दे हैव सोल्ड आउट, लेकिन भूल गए कि कौन सा शेयर में कोई कंपनी में शेयर में कंपनी में डाला था नहीं डाला था, दे हैव नॉट अपडेटेड, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देन लास्ट वन इज द पोर्टफोलियो ऑडिट, वट एवर यू हैव द इन्वेस्टमेंट, जैसे आप रेगुलर चेकअप ब्लड का या बॉडी का चेकअप करवाते रहते हो, यू हैव टू फाइंड आउट कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है दैट इज ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। गो फॉर द पोर्टफोलियो ऑडिट, यू कैन डू योरसेल्फ, यू कैन डू विथ एनी अदर कंसल्टेंट, लेकिन डू ऑलवेज फॉर मतलब 6 मंथ या 1 ईयर में गो फॉर द पोर्टफोलियो ऑडिट की जो भी यू हैव द पोर्टफोलियो, लाइक इंश्योरेंस में है, म्यूचुअल फंड में है, रियल एस्टेट में है, वो सही है या नहीं है। ही विल आइडेंटिफाई, सपोज दैट आपने एसबीआई ब्लू चिप पे पैसा लगाया हुआ है, इट वाज अ वेरी गुड 2 years बैक, लेकिन राइट नाउ इट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। सपोज दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन एस बैंक, it was a very good 2-3 years back, but now it is not good, but you have made the investment in any pharma company, Sun Pharma, you can say Apollo Hospital, yeah, okay, Dr. Reddy, then it is the good company, because जो medical का जो facility है that will never will go in the down, it will every time it will grow up। तो वो आपको ये देखना कि मेरा फंड कहाँ लगा हुआ था, अब उसका व्हाट इज द सिनेरियो और वेयर आई हैव टू गो, सो दैट कि फ्यूचर में भी मेरे को इनकम हो। तो आई नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द पोर्टफोलियो ऑडिट। पोर्टफोलियो ऑडिट में वी विल डिस्कस कि व्हाट एवर यू हैव द पोर्टफोलियो एज अ होल एंड सोल, हाउ यू कैन मेक एनालिसिस योरसेल्फ और विथ हेल्प ऑफ एनी कंसल्टेंट। So whatever you have the question answer, you can discuss, and Savana ji, you can